Good morning, students. I am Ms. Sheena Yadav. Today our topic is solution of system of linear equations. So we will discuss about how we can solve a system of linear equations. So first of all, we will discuss about the solution of non-homogeneous system of equations. So in this type, first of all, the system of linear equations. First of all, we have to transform the given equations in the matrix form. This is Ax is equal to B, where A is a coefficient matrix and X is a variable matrix and B is a constant matrix. After finding the value of Ax and B, there are three cases. In the first case, we have to find the rank of A augmented B matrix. If the rank of A is equal to the rank of A augmented B matrix, then if the rank of A is equal to rank of A augmented B matrix, then we have the unique solution. And if this rank is equal to n, the number of unknowns, then the unique solution. And if this rank is equal to rank of A augmented B matrix and this is less than n, means number of unknowns, then we have infinite solution. And the system of equation in both these cases are, and the system of equation in this case is consistent. But if the rank of A is not equal to rank of A augmented B, then the system of equation is inconsistent and we have no solution in this case. In this case, when we have the no solution, then हमें इसको आगे solve नहीं करना है, ओके? लेकिन जब हमारे पास यूनिक सॉल्यूशन हो और इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो, उसके बाद हमें क्या है, इसको आगे प्रोसीड करना है और सॉल्यूशन को फाइंड करना है. सो क्वेश्चन देखते हैं हम. So the question is, solve the system of equation is 2x minus 3y plus z is equal to 9 and x plus y plus z is equal to 6. And the third equation is x minus y plus z is equal to 2. This is the given system of equations. In this system of equations, first of all, we have to transform these equations in the matrix form. So, matrix form में अगर आप इसको represent करेंगे solution, so matrix form में कैसे लिखोगे इसको? सबसे पहले हमारी क्या होगी? Coefficient matrix. So 2, 3, minus 3 and 1. 1, 1, 1, 1 minus 1 and 1. And this is the variable matrix x, y, z. And constant matrix 9, 6, 2. Which is of the form Ax is equal to B. Where A is equal to 2 minus 3, 1, 1, 1, 1. And 1 minus 1, 1. And x is equal to variable matrix x, y, z. And B is equal to constant matrix. This is 9, 6 and 2.
Now we have to find the rank of A augmented B matrix. So rank of A augmented B matrix. रैंक फाइंड करने के लिए सबसे पहले हम ऑग्यूमेंटेड मैट्रिक्स को लिखेंगे. सो ए मैट्रिक्स क्या है आपके पास 2 -3 1 1 1 1 1 -1 1 एंड ऑग्यूमेंटेड मैट्रिक्स क्या है आपके पास बी मैट्रिक्स इज 9 6 एंड 2. Now for finding the rank of this augmented matrix we have to transform this matrix in the echelon form. ठीक है. अब इक्लन फॉर्म क्या होती है, तो इक्लन फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, फर्स्ट स्टेप क्या है कि इक्लन फॉर्म के अंदर जो लीडिंग एंट्री है वो क्या है 1 होनी चाहिए, यूनिटी होनी चाहिए. नेक्स्ट क्या है आपका कि जो नेक्स्ट वाली जो रो है उसके अंदर जो नंबर ऑफ जीरोस हैं वो क्या है आपकी प्रीसीडिंग रो के अंदर जितनी नंबर ऑफ जीरोस है उससे कम होनी चाहिए. एंड थर्ड ऑल द जीरोस रोज लाइज एट द बॉटम ऑफ दिस मैट्रिक्स. सारी अगर कोई भी जीरो रो है तो वो आपके पास बॉटम पे होनी चाहिए. तो पहले हम इसको इक्लन फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे और इक्लन फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हमें हर नॉन जीरो रो का जो लीडिंग एलिमेंट है उसको क्या है 1 बनाना है. ठीक है. और उसको हम लीडिंग एंट्रीज को 1 बनाएंगे बाय यूजिंग द एलिमेंट्री ऑपरेशंस. या तो हम एलिमेंट्री रो ऑपरेशन यूज कर सकते हैं या फिर एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशंस. ओके. सो ये आपके पास क्या है ए ऑग्यूमेंटेड बी मैट्रिक्स. तो हम अब इसको इक्लन फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे. क्या है आपके पास, देखो ये आपके पास है ए ऑग्यूमेंटेड बी मैट्रिक्स. तो सबसे पहले आपकी जो फर्स्ट रो है आप में क्या करना है, इस एलिमेंट को आपको 1 बनाना है. तो इस वो एलिमेंट को 1 आप क्या करोगे, या तो आप क्या करो इसको R1 R2 या फिर R3 से एक्सचेंज कर दो, है ना, इंटरचेंज कर सकते हैं. सो फर्स्ट ऑपरेशन हो जाएगा आपका कि R1 इंटरचेंज विद R3, कि मैंने R1 रो को R3 में चेंज कर दिया और R3 को R1 में. तो क्या हो जाएगी आपकी ए ऑग्यूमेंटेड बी मैट्रिक्स इज इक्विवेलेंट टू, और ये आपकी रैंक नहीं होगी ना यहाँ पे, दिस इज द ऑग्यूमेंटेड मैट्रिक्स. सो ए ऑग्यूमेंटेड बी मैट्रिक्स इज इक्विवेलेंट टू. अब आपने R1 और R3 रो को अगर इंटरचेंज करा है तो R1 की प्लेस पे क्या है R3 वाली रो आ जाएगी. सो 1 -1 1 एंड दिस इज 2 1 1 1 6. R2 में कोई चेंज नहीं है तो R2 एज इट इज रहेगी. एंड नेक्स्ट फिर क्या है R3 के प्लेस पे क्या है R1 वाली रो आएगी. 2 -3 1 एंड दिस इज 9. ये आपकी ए ऑग्यूमेंटेड बी मैट्रिक्स है. ठीक है ना. ऐसा नहीं करना है कि अगर आप इसको इंटरचेंज कर रहे हो R1 R3 को तो ये वाली जो बी मैट्रिक्स के एलिमेंट से इनको इंटरचेंज नहीं करो. ठीक है ना, क्योंकि ये ऑपरेशन सही आप पूरी ए ऑग्यूमेंटेड बी मैट्रिक्स के अंदर अप्लाई कर रहे हो तो सारी की सारी रो है वो नीचे आएगी. ओके. सो R1 को इंटरचेंज कर दिया R3 से. अब नेक्स्ट स्टेप में क्या है कि जो ये आपका लीडिंग एलिमेंट है जिसको आपने 1 बनाया ना, इसके नीचे जो एलिमेंट्स है ना वो आपके 0 बनने चाहिए. ठीक है ना. इक्लन फॉर्म में चेंज करने के लिए सबसे पहले आप लीडिंग एंट्री को 1 बनाओगे और उसके बाद जो नीचे वाले उसके नीचे जितने भी एलिमेंट्स है उनको क्या है आपको 0 बनाना है. देन क्या ऑपरेशन आप यूज करोगे, देखो ये इसको 0 बनाना है तो ये कौन सी वाली रो के अंदर आपका R2 में. सो R2 इंटरचेंज विद R2 माइनस R1. लेकिन जब आप R2 और R3 में इसको 0 बनाओगे तो ये कैसे करोगे आप R1 रो की हेल्प से. ओके. R1 रो की हेल्प से मतलब जिसको आपने 1 बनाया है जो आपने ये 1 बनाया है ना इसकी हेल्प से ही आपको R2 और R3 में यहाँ पे 0 बनाना है. ठीक है. सो R2 को 0 कैसे बनेगा, अगर हम R2 को R1 में से सब्ट्रैक्ट कर देते हैं. सो चेंज किस में कर रहे हैं हम, क्योंकि हमें 0 तो R2 को बनाना है. सो R2 इंटरचेंज विद R2 माइनस R1. ठीक है ना. नेक्स्ट फिर क्या करना है, R3 को करना है आपको. सो R3 चेंजेस टू R3 माइनस 2 टाइम्स ऑफ R1. ठीक है. अब ये ऑपरेशन हम अप्लाई करेंगे. देन ए ऑग्यूमेंटेड बी मैट्रिक्स दिस इज इक्विवेलेंट टू क्या बन जाएगा, देखना R1 में कोई चेंज नहीं है तो R1 को एज इट इज रखोगे. R2 में क्या चेंज है कि R2 माइनस R1. सो R2 माइनस R1 करोगे तो 1 माइनस 1 0, फिर यहाँ से 1 माइनस माइनस 1 तो ये हो जाएगा 2 और 1 माइनस 1 क्या होएगा 0 एंड 6 माइनस 2 कितना हो जाएगा आपका 4. उसके बाद R3 में क्या ऑपरेशन यूज करोगे कि R3 माइनस 2 टाइम्स ऑफ R1. सो R3 में क्या है 2 माइनस इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये 0 बन गया. R3 क्या है -3 और माइनस 2 टाइम्स ऑफ -1 तो ये क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 2 बन जा
2, सो -3 और ये हो जाएगा -1। ओके, और उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट है वो क्या हो जाएगा, आपके पास नेक्स्ट एलिमेंट है वो क्या बनेगा, 1। ठीक है, जब आपने 0 बनाया तो ये क्या बन जाएगा, यहाँ पे देखना R3 मतलब 1 - 2, सो माइनस का 1 एंड 9, फिर यहाँ से फिर से इसमें भी अप्लाई करोगे तो R3 मतलब 9, 9 माइनस, साइड में आप करके देख सकते हो कि 9 - 2 टाइम्स ऑफ दिस, सो 9 - 4 दिस इज 5। ठीक है, उसके बाद क्या करना है आपको कि जो ये सेकंड वाली जो रो आई है आपके पास, इसमें भी क्या है, आपका लीडिंग एलिमेंट है वो क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। तो इसमें 1 बनाओगे तो क्या हो जाएगा आपके पास, इसको 1 बनाने के लिए आप क्या करोगे, R2 चेंजेस टू 1/2 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, 1/2 टाइम्स ऑफ R2, तो ये क्या है 1 बन जाएगा। देन A ऑगमेंटेड B मैट्रिक्स इज इक्विवेलेंट टू A ऑगमेंटेड B मैट्रिक्स, दिस इज इक्विवेलेंट टू, क्या बन जाएगा देखना, R1 में कोई चेंज नहीं है, देन दिस इज 2 0, अगर आप 1/2 को R2 से मल्टीप्लाई करते हो तो ये क्या हो जाएगा देखना, 0 इंटू 1/2 तो 0, यहाँ पे 2 इंटू 1/2 कितना जाएगा 1, और ये क्या हो गया आपका 0, फिर यहाँ पे 4 को 1/2 से करोगे तो कितना आएगा 2। ठीक है, एंड यहाँ पे क्या मिलेगा आपको 0 -1 -1 और हेयर यू गेट 5। ठीक है, अब आपको क्या करना है कि ये 1 जो है सेकंड रो में, इसके नीचे आपको 0 बनाना है। ठीक है, और इसको 0 बनाने के लिए कौन सी रो में आपका R3 के अंदर, तो क्या चेंज करोगे आप, R3 में चेंज करोगे, और क्या चेंज होगा कि R3 चेंजेस टू, क्या चेंज करेंगे हम कि R3 प्लस R2, क्योंकि अब आपको इसको 0 बनाना है, लेकिन इसकी हेल्प से, R2 की हेल्प लेके ही आपको इसको 0 बनाना है। देन यू गेट कि A ऑगमेंटेड B मैट्रिक्स इज इक्विवेलेंट टू, फर्स्ट में क्या आएगा आपका 1 -1 1 एंड 2, उसके बाद R2 में कोई चेंज नहीं है, सो 0 1 0 और ये हो गया 2। R3 में क्या चेंज होएगा देखना कि R3 प्लस R2, सो 0 + 0 0, यहाँ -1 + 1 ये क्या हो जाएगा 0, -1 + 0 इज -1, और यहाँ पे क्या होगा 5 + 2 दिस इज 7, ये आपका ना -1 है। ओके, ठीक है, आप क्या करना है, ये आपकी क्या है इक्लन फॉर्म में चेंज हो गई। ठीक है ना, तो इक्लन फॉर्म में चेंज हो गई तो यहां से आप रैंक कैसे फाइंड करेंगे, रैंक को इक्लन फॉर्म में चेंज करने के बाद आपकी रैंक क्या होती है, नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज, तो यहाँ पे कितनी रोज नॉन जीरो है 3, सो रैंक क्या हो जाएगी आपके पास, रैंक ऑफ A ऑगमेंटेड B मैट्रिक्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज, और वो कितनी है आपके पास 3, तो रैंक कितनी हो गई आपके पास A ऑगमेंटेड B मैट्रिक्स की 3। सिमिलरली रैंक ऑफ A आपको फाइंड करना है, तो A मैट्रिक्स की रैंक देखो, जब भी आपको A की रैंक फाइंड करनी है तो सिर्फ आप इतने मैट्रिक्स की रैंक देखोगे, जब A ऑगमेंटेड B की रैंक निकालनी है तो पूरी यहां तक की मैट्रिक्स है जो उसकी रैंक फाइंड करोगे। ठीक है ना, तो यहां से A मैट्रिक्स की रैंक कितनी है आपकी 3, तो यहां से क्या पता चल रहा है आपको कि रैंक ऑफ A इक्वल्स टू रैंक ऑफ A ऑगमेंटेड B एंड दिस इज इक्वल टू 3, और 3 क्या है नंबर ऑफ अननोन्स, क्योंकि जो आपकी गिवन इक्वेशंस थी उसमें क्या है x y और z, 3 अननोन्स से जिनकी वैल्यूज हमें फाइंड करनी थी, तो यहां से आपकी रैंक है वो नंबर ऑफ अननोन्स के बराबर आ गई, दैट इज इक्वल टू नंबर ऑफ अननोन्स। ठीक है, तो अगर ये कंडीशंस होती है कि रैंक है A ऑगमेंटेड B मैट्रिक्स की और A की रैंक दोनों की बराबर होती है और नंबर ऑफ अननोन्स के बराबर होती है, then we say that there is a unique solution and the system of equation is consistent, and the system of equation is consistent and there exists a unique solution of the following system of equations। अब आपको वो सॉल्यूशन भी फाइंड करना है। अब सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए आप क्या करोगे, जो आपके पास ऑगमेंटेड मैट्रिक्स आई है, आपने इक्वल फॉर्म में चेंज करा है ना, ये वाली जो मैट्रिक्स है ना इसको रखोगे यहाँ पे, तो यहाँ से आपके पास क्या हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करोगे, देखो अब देखो आपकी जो A ऑगमेंटेड B मैट्रिक्स आई है वो क्या है 1 -1 1, उसके बाद 0 1 0 एंड नेक्स्ट वन इज 0 0 -1,
ये आपकी ए मैट्रिक्स आ गई। यहाँ पे क्या होती है आपकी एक्स मैट्रिक्स, तो एक्स मैट्रिक्स में क्या है एक्स वाई और जेड, एंड दिस इज इक्वल टू बी। बी मैट्रिक्स क्या है, ये आपकी होगी मैट्रिक्स में चेंज करने के बाद ये 2 2 और 7, ठीक है। अब आप इसको क्या करोगे, मल्टीप्लाई करोगे। तो मल्टीप्लाई आपको पता है मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कैसे होती है कि रो को कॉलम से मल्टीप्लाई करना होता है। तो लास्ट में अगर आप थर्ड रो को मल्टीप्लाई करोगे तो 0 को x से करोगे 0 0 इंटू वाई, यहाँ से क्या मिलेगा माइनस जेड इज इक्वल टू 7। सो जेड की वैल्यू आपके पास क्या आ गई -7, ठीक है। सिमिलरली जब आप सेकेंड रो को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा आपके पास कि 0 इंटू एक्स, सो वाई इज इक्वल टू 2। सो y की वैल्यू आ गई 2, एंड इन द फर्स्ट इक्वेशन x माइनस वाई प्लस z इज इक्वल टू 2। तो हमारे पास यहाँ पे क्या है x माइनस वाई की वैल्यू पुट कर दो 2 और z की वैल्यू है -7 इज इक्वल टू 2। सो x माइनस 9 इज इक्वल टू 2 एंड x इज इक्वल टू 9 प्लस 2 दिस इज 11। सो हमारा क्वेश्चन यही था कि सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। तो यहाँ से हमारे पास आ गई x की वैल्यू 11 है, y की वैल्यू 2 है एंड z की वैल्यू -7 है, जो इन तीनों इक्वेशंस को सेटिस्फाई करेगी, ठीक है। तो ये था कि हाउ वी कैन सॉल्व द सिस्टम ऑफ नॉन होमोजेनियस इक्वेशंस। अब हमारा सेकंड आता है कि हो सकता है कि हमारी इक्वेशंस है वो होमोजेनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन हो। तो अगर होमोजेनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन है तो आप उसको कैसे सॉल्व करोगे। अब उसको हम देखते हैं कि होमोजेनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस है तो आप मैट्रिक्स को कैसे सॉल्व करोगे। देखो देखो अगर आपकी सिस्टम ऑफ इक्वेशंस है वो होमोजेनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस है, तो होमोजेनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन के अंदर जो आपका मैट्रिक्स फॉर्म होती है ना वो इस टाइप की होती है ax इज इक्वल टू 0, ठीक है ना। तो ये 0 क्या है आपकी यहाँ पे 0 मैट्रिक्स है, और a क्या है यहाँ पे सेम वही कोफिशिएंट मैट्रिक्स है, और x आपकी क्या होती है वेरिएबल मैट्रिक्स है। तो अगर सिस्टम ऑफ इक्वेशन आपका होमोजेनियस है तो उसमें भी आपके पास देखो 3 केस आते हैं। फर्स्ट होता है आपके पास यहाँ पे आपको सिर्फ a मैट्रिक्स की रैंक निकालनी होती है। अगर रैंक है a मैट्रिक्स की दिस इज इक्वल टू अगर n के बराबर आ जाती है तो हमारे पास वहां पे क्या होता है ओनली 0 सॉल्यूशन, दिस इज ट्रिवियल सॉल्यूशन। और ट्रिवियल सॉल्यूशन वो क्या होता है आपके पास 0 सॉल्यूशन होता है, ठीक है ना। उसके बाद सेकंड आता है कि अगर आपकी जो रैंक ऑफ ए है वो लेस देन n आ जाए, ठीक है ना। n क्या होता है नंबर ऑफ अननोन्स, अगर रैंक है वो नंबर ऑफ अननोन से कम हो देन आपके पास क्या होगा वहां पे, देन द सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज कंसिस्टेंट एंड वी हैव यूनिक सॉल्यूशन, ठीक है ना। उसके बाद आता है थर्ड वाले में कि नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन। तो नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन आपको कब मिलेगा, अगर आपसे क्वेश्चन में पूछा गया कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x y z फॉर व्हिच द सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज अ नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन, देन उस केस में आपको सबसे पहले क्या है इसका डिटरमिनेंट निकालना पड़ेगा ए मैट्रिक्स का। अगर डिटरमिनेंट आपका 0 आ जाता है देन यू से दैट द सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज ए नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन, ठीक है ना। और नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन के लिए क्या कंडीशन है आपकी कि रैंक ऑफ ए यहाँ पे क्या होनी चाहिए लेस देन n होनी चाहिए। तो ये 3 कंडीशंस आपको ध्यान रखनी है और उसके बाद आप होमोजेनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस के सारे क्वेश्चंस ट्राई कर सकते हैं। अब हम एक क्वेश्चन करेंगे देखो होमोजेनियस सिस्टम पे। क्वेश्चन देखो क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ k सच दैट द सिस्टम ऑफ इक्वेशन x प्लस के वाई, सिस्टम ऑफ इक्वेशन आपको क्या दिया हुआ है x प्लस के वाई प्लस +3z इज इक्वल टू 0 एंड सेकेंड इक्वेशन इज 4x plus 3y plus kz equals to 0 and 2x plus 2y 2x plus y plus 2z is equal to 0। इसमें लिखा है फाइंड द वैल्यू ऑफ k such that the system of equation has a non-trivial solution, has a non-trivial solution।
आपको क्या करना है, कह रहे कि k की वैल्यू आपको फाइंड करनी है, फाइंड द वैल्यू ऑफ k सच दैट द सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज ए नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन। तो सबसे पहले देखो जो गिवन इक्वेशंस है, सबसे पहले आप क्या करोगे, उनको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखोगे, ठीक है ना। सो मैट्रिक्स फॉर्म में आपको पता ही है कैसे लिखना है सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को, तो मैट्रिक्स फॉर्म में लिखो सबसे पहले, राइट द गिवन इक्वेशंस इन द मैट्रिक्स फॉर्म, वी हैव द मैट्रिक्स A इज इक्वल टू, क्या हो जाएगी आपके पास 1 K 3 and 4 3 K and 2 1 2. This is the A coefficient matrix and X is variable matrix. So X is equal to क्या होगा आपके पास X Y Z एंड जीरो क्या होती है आपके पास, जीरो मैट्रिक्स। तो जीरो मैट्रिक्स कौन सी होती है, जिसके सारे एलिमेंट्स क्या हो, जीरो, ये जीरो मैट्रिक्स, ठीक है ना। सो यहाँ से हमने वैल्यू फाइंड कर ली, अब हमें क्या करना है, ए मैट्रिक्स की आपको रैंक निकालनी है, ठीक है ना। तो ए मैट्रिक्स की रैंक निकालने के लिए क्या करेंगे, हम सबसे पहले इसको इक्लन फॉर्म में चेंज करेंगे। इक्लन फॉर्म में चेंज करने के लिए सेम प्रोसीजर है, सबसे पहले तो क्या करना है, हर रो का जो लीडिंग एंट्री है वो 1 होनी चाहिए आपकी। फिर क्या होता है कि जो नेक्स्ट जो रो है उसके अंदर जो नंबर ऑफ जीरोस है वो लेस देन होना चाहिए देन द प्रीसीडिंग रो। एंड थर्ड क्या है कि जो सारी की सारी जो जीरो रो अगर कोई होती है मैट्रिक्स के अंदर तो वो सारी है वो बॉटम पे होनी चाहिए, ठीक है ना। तो अब हम पहले इसको इक्लन फॉर्म में चेंज करेंगे रैंक निकालने के लिए, उसके बाद जब वो इक्लन फॉर्म में चेंज हो जाएगी देन आपके पास जो नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज होंगी वो आपकी रैंक हो जाएगी, ठीक है ना। अब क्या करोगे, यहाँ से देखो एक ही रैंक निकालने के लिए क्या करोगे, एलिमेंट्री ऑपरेशंस यूज करोगे आप। एलिमेंट्री ऑपरेशन यूज करेंगे तो सबसे पहले देखो लीडिंग एंट्री 1 होनी चाहिए, तो यहाँ पे है हमारी लीडिंग एंट्री 1, ठीक है ना। फिर नेक्स्ट क्या होता है आपके पास कि 1 के नीचे वाले को 0 बनाना है, देन क्या करोगे आप कि R2 चेंजेस टू R2 माइनस 4 टाइम्स ऑफ R1 एंड सिमिलरली R3 चेंजेस टू R3 माइनस 2 टाइम्स ऑफ R1, ठीक है। अगर ये ऑपरेशन अप्लाई करोगे देन योर A मैट्रिक्स इज इक्विवेलेंट टू क्या बन जाएगी, देखो क्योंकि R1 में कोई चेंज नहीं है तो एज इट इज लिखोगे, R2 में चेंज करेंगे कि R2 माइनस 4 टाइम्स ऑफ दिस, तो ये 0 बन जाएगा। यहाँ पे करोगे तो R2 में क्या है आपका 3, सो 3 माइनस 4 टाइम्स ऑफ R1 क्या है आपका K, सो ये क्या हो जाएगा देखना 3 माइनस 4K, ठीक है। एंड यहाँ पे क्या हो जाएगा आपके पास K माइनस 4 3 जा 12, ठीक है ना। सिमिलरली R3 में जब आप चेंज करोगे तो R3 माइनस 2 टाइम्स ऑफ R1। ये ध्यान रहे कि जब भी आप ऑपरेशंस यूज कर रहे हो तो कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट के साथ ही ये ऑपरेशन अप्लाई करना है। ऐसा नहीं है कि आप इस 2 को इस 3 के साथ ही अप्लाई कर दो, ऐसा नहीं है। 2 है इसके कोरस्पॉन्डिंग R1 के अंदर ये एलिमेंट है तो R2 का 1 के साथ ही ऑपरेट करना है, ठीक है ना। सो R3 माइनस, तो ये 0 बन जाएगा आपके पास। सिमिलरली R3 मतलब 1 माइनस 2 टाइम्स ऑफ दिस, तो ये क्या हो जाएगा 1 माइनस 2K। फिर क्या होगा R3 मतलब 2 माइनस 2 टाइम्स ऑफ दिस, तो 2 माइनस 6 कितना हो जाएगा, ये माइनस का 4, ये आपके पास आ गई। उसके बाद क्या होता है नेक्स्ट कि सेकंड रो के अंदर ये आपका लीडिंग एलिमेंट है, इसको आपको 1 बनाना है ना। और ये वाला एलिमेंट 1 कब होगा, जब आप इसको 3 माइनस 4 के से डिवाइड कर दोगे, ठीक है ना। सो नेक्स्ट ऑपरेशन क्या लगेगा आपका कि R2 चेंजेस टू 1/3 माइनस 4K टाइम्स ऑफ R2, ठीक है ना, कि R2 को आप क्या करोगे 1 माइनस 3K से मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। देन क्या बन जाएगा आपके पास A मैट्रिक्स इज इक्विवेलेंट टू ये हो गया, देखना A मैट्रिक्स दिस इज इक्विवेलेंट टू क्या बन गया, R1 में कोई चेंज नहीं है सो ये एलिमेंट एज इट इज रहेगा 1K3। R2 में क्या है 1/3 माइनस 4K से मल्टीप्लाई करना है तो ये 0, इसको करोगे तो ये 1 बन जाएगा। और यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके पास K माइनस 12 डिवाइडेड बाय 3 माइनस 4K, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा आपके पास, इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं ना, ओके। R3 रो में क्या है आपके पास, ये 0 है, इधर क्या है 1 माइनस 2K और फिर क्या है यहाँ पे ये माइनस का 4, ठीक है ना। तो ये मैट्रिक्स बन गई। अब आपको क्या करना है कि 1 की हेल्प से ये R3 वाला जो एलिमेंट है नीचे का उसको आपको 0 बनाना है। देन आप क्या ऑपरेशन यूज करोगे, देखो कि R3 चेंजेस टू R3 माइनस
1 माइनस 2k टाइम्स ऑफ ये क्या है आपके पास R2 कि इस वाले की हेल्प से, इस 1 की हेल्प से आपको इसको 0 बनाना है, ठीक है ना। सो R3 में से माइनस कर दोगे क्या, 1 माइनस 2k से इसको मल्टीप्लाई करके R3 से सबट्रैक्ट कर देंगे, देन क्या मिलेगा, इसको रब कर देते हैं ना। अब देखो ये ऑपरेशन हम यूज करेंगे, देन आपकी A मैट्रिक्स इज इक्विवेलेंट टू क्या बनेगी देखना, 1k 3, R2 में कोई चेंज नहीं है तो सेम रहेगी 0 1, यहाँ पे होगा k माइनस 12 डिवाइडेड बाय 3 माइनस 4k, और R3 में जब आप चेंज करोगे तो R3 माइनस दिस, तो ये तो 0 ही हो जाएगा, ठीक है ना। इसमें से करोगे तो 1 माइनस 2k और माइनस 1 माइनस 2 ये 0 बन गया आपका, और यहाँ पे क्या बनेगा देखना, R3 मतलब माइनस 4 माइनस 1 माइनस 2k टाइम्स ऑफ क्या है R2, और R2 में कौन सा एलिमेंट है, k माइनस 12 डिवाइडेड बाय 3 माइनस 4k, ठीक है। तो ये आपकी मैट्रिक्स बन गई A मैट्रिक्स, ठीक है ना। अब हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि k की वैल्यू निकालो सच दैट द सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज अ नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन। तो नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन के लिए अभी मैंने बताया था आपको कि क्या होना चाहिए, रैंक ऑफ A शुड बी लेस देन n। n क्या होता है, नंबर ऑफ अननोन्स, और यहाँ पे आपके पास क्या कितने अननोन्स थे, 3 थे, x y और z, ठीक है ना। तो रैंक कितनी होनी चाहिए, 3 से कम होनी चाहिए, और 3 से कम अगर रैंक हो दैट मीन्स रैंक कितनी हो सकती है आपकी, या तो 2 हो सकती है या फिर 1 हो सकती है, ठीक है ना। तो यहाँ पे अगर रैंक लेस देन n हो, इफ रैंक ऑफ A, फॉर लिखना है आपको कि फॉर नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन, ट्रिवियल सॉल्यूशन रैंक ऑफ A शुड बी लेस देन n, n इज इक्वल टू कितना है और 3, तो रैंक क्या है 3 से कम होनी चाहिए, दिस इंप्लाइज 3 से कम कब होगी रैंक, जब व्हेन क्या होगा, ये एलिमेंट है जो आपका व्हेन माइनस 4 माइनस 1 माइनस 2k इंटू k माइनस 12 डिवाइडेड बाय 3 माइनस 4k, दिस इज इक्वल टू 0। अगर ये 0 के, अब इसको सोल्व करना है आपको और k की वैल्यू फाइंड करनी है, कैसे सोल्व करोगे, 4 के नीचे कुछ भी नहीं है तो 1 लिख सकते हो, 3 माइनस 4 के एलसीएम ले लेना, तो क्या आ जाएगा माइनस 4 इंटू 3 माइनस 4 के और माइनस 1 माइनस इसको मल्टीप्लाई कर दो या तो फिर, ठीक है ना, पहले 1 से करोगे, ब्रैकेट यूज कर लेना क्योंकि माइनस साइन है, अदरवाइज तो क्या करोगे आप, मिस्टेक कर सकते हो ना। सो ये आ जाएगा आपके पास k माइनस 12 माइनस 2k स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 24k, दिस इज इक्वल टू 0, और डिनोमिनेटर वाली टर्म इधर जाके 0 बन जाएगी। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो माइनस 4 से पहले मल्टीप्लाई करो, सो माइनस 4 माइनस 12 माइनस माइनस प्लस, ये हो जाएगा 4 4 जा 16k, ठीक है, बाहर माइनस साइन है तो अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे, तो माइनस ये हो जाएगा प्लस 2k स्क्वायर, ओके, यहाँ से 24k है और यहाँ पे 1 है तो 25k हो गया, सो माइनस का 25k, और यहाँ पे कितना हुआ देखना, माइनस का 12, तो माइनस 12 है, बाहर एक माइनस है तो प्लस का 12, दिस इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या बन जाएगा देखना, 2k स्क्वायर, और यहाँ पे क्या है 16k और ये माइनस का 25k, तो क्या कितना बचेगा माइनस 9, ठीक है ना, k, और यहाँ से देखो माइनस 12 और प्लस 12 ये कैंसिल हो गया, दिस इज इक्वल टू 0। अब क्या करोगे, यहाँ से k को कॉमन निकाल लो, अगर आप k को कॉमन निकालोगे देन यहाँ पे क्या बच जाएगा 2k माइनस 9 इज इक्वल टू 0। सो दो टर्म्स का प्रोडक्ट 0 के बराबर है, सो आइदर k इज इक्वल टू 0 और 2k माइनस 9 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या वैल्यू आ गई कि k इज इक्वल टू 0 या फिर k इज इक्वल टू कितना आएगा 9/2। सो हमें यही करना था कि k की वैल्यू फाइंड करनी थी सच दैट द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज ए नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन, ठीक है ना। तो ये आपका हो गया है, ये क्या है कि इन चीजों को ध्यान में रख के आप होमोजीनियस और नॉन होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस के सारे क्वेश्चंस है उनको सॉल्व कर सकते। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।